Good morning, friends. Today we are discussing about the enzyme purification part 2. In previous part, enzyme purification 1, we are discussing the different method based on the size and mass. And on the basis of size and mass, we discussed the different technique like centrifugation, gel filtration chromatographic technique, dialysis. So in the second part is separation technique based on the polarity, and the polarity is already we know that they is divided into two parts. First is the first on the basis of charge, and second on the basis of hydrophobicity. So now here we discuss about the technique based on the charge. The first one technique is ion exchange chromatography. In ion exchange chromatography is also know about the basic principle of chromatographic technique is based on the two-phase separation based on the two-phase system. One phase is the stationary phase, another phase is the mobile phase. So for the preparation of the stationary phase, we just use the different gels or different ion exchangers, and on the basis of different exchangers we simplify. First we prepare the column, and mobile phase prepared with the help of different buffer solution. So for the preparation of the different stationary phase, we are using different exchangers. These are cation exchanger or anion exchangers. Simple matrix is prepared of the different cellulose or Cephadex and Cepharose material, and out of this periphery a different anion exchangers is attached, and here is the cation exchanger is attached. So this is our exchangers used in the preparation of the ion exchange chromatography, and the most commonly used different cation exchangers are in ion exchange chromatography is the carboxy methyl group, and the anion exchanger is the diethyl amino ethyl groups. So these two cation and anion exchanger is widely used in the ion exchange chromatography. And then polystyrene and cellulose is another useful material used in the ion exchange chromatography in the form of Cepharose and Cephadex. Now we are discussing about its working principle, how we prepare the stationary phase with the help of this flow chart. So first of all, the stationary phase put in a beaker in the form of commercially available beads, that is the zero gel, or already we discussed it, the present in the form of Cepharose and Cephadex, and then placed these beads into the NaOH solution for 30 minutes. After 30 minutes incubation period, we washed these column with the help of distilled water till the pH is become 7, and then now this material is again placed into the HCl solution for 30 minutes, and after 30 minutes incubation period it's again washed with the help of distilled water till the pH becomes 7. So first it's washed with the NaC acidic solution, then basic solution, and now it's the neutral solution is prepared. Then it's kept this solution kept into the water overnight, and then the 12 bead pour into the glass column. These glass column is prepared, and now its glass beads washed with the help of different buffers. And at that time, one thing we are kept in our mind, the OD of this pH or OD of this buffer, inlet buffer is same till the outlet buffer is also same. सो इस तरीके से हम इसको वॉश करेंगे. जैसे ही हम इसमें बफर डालेंगे तो जो ओडी हमारी आई थी एब्जॉर्प्शन की बफर की स्टार्टिंग में, वही जब इसको इम्प्योरिटीज़ को सबको वॉश करने के बाद जो लास्ट की ओडी है जब तक सेम ना आ जाए तब तक हम इसको बफर से वॉश करते रहेंगे. जब हमारी ओडी सेम आ जाएगी तो दैट मीन्स ये इंडिकेट करेगी कि जो कॉलम है इसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी वॉश आउट हो गई हैं. देन आफ्टर वॉशिंग अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है, जो हमारा डिफरेंट होमोजेनाइज मिक्सचर है, उसको हम इसमें पोर कर देंगे. पोर करने के बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इल्यूट आउट हो जाएंगे और सिंपल उनको कलेक्ट कर लेंगे. अब ये सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंजर्स, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो कैटायन एक्सचेंजर्स, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज के साथ बाइंड कर जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाएंगे. तो दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. और ये जो फ्लो चार्ट की चीज़ें थी वो सारी की सारी इसमें रिटन फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है.
ये सिंपल उसकी पीएच कैसे मेंटेन करेंगे, तो डिफरेंट पीएच मेंटेन करने के लिए जो अमोनियम एसीटेट है वो 4.6 पीएच मेंटेन करता है, अमोनियम फॉर्मेट से 4.5 मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमें पीएच 8 से लेकर 10 के इन बिटवीन मेंटेन करनी है तो उसके लिए हम अमोनियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं जो डिफरेंट पीएच को मेंटेन करता है। देन यूजेस की बात करेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इट मोस्ट वाइडली यूज इन द टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। जो डिफरेंट आरओज होते हैं जो हमारे घर में भी यूज़ होते हैं उसमें हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। देन डिफरेंट एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड्स इज ऑल्सो completed on the basis of ion exchange chromatography। then अगर हमें बेस की कंपोजिशन डिटेक्ट करनी है न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितने जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन गुआनिन, तो उसको भी हम इजीली आइडेंटिफाइड और डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एंड डिफरेंट जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर उनको भी डिटरमाइन करना हो तो भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूजेज ऑफ आयन एक्सचेंज chromatography। Now we are discussing about the electrophoresis। So electrophoresis की अगर हम बात करें तो एक सिंपल फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूले की फॉर्म में ये समझ में आ सकती है, द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब जितना किसी भी मॉलिक्यूल का साइज होगा उसके बेसिस पे चार्ज की वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सिंपल माइग्रेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो सिंपल इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स सिंपल डीएनए और आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल सिस्टम में सेपरेट आउट करते हैं। देन जो फ्यू डाल्टन्स है, फ्यू डाल्टन से लेके सेवरल 1000 डाल्टन तक जो साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है अगर हम उसके टाइप की बात करें तो इसको वेरियस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, इट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा। सो here we discuss about the paper electrophoresis। in paper electrophoresis a paper simple a sheet of high quality filter paper put into two different containers so that one end is dipped into the one buffer solution and another end dipped into the another container। and in these containers different electrolytes are filled। now these containers is connected with the different batteries। the current of this battery is 45 volt in DC current। and after that we simple buffer solution will homogeneously wet into the filter paper and after homogeneously wetting the filter paper we just simply load our sample here। this is the sample loading sites and make the circuit and passes the current into this electrolytes। and whenever we passes the current into these electrolytes then we can easily see that the negatively charged molecule will move towards the anode and the positively charged molecule move towards the cathodes। so these molecules is migrate towards their opposite charge। so simple the diagrammatic representation of the paper electrophoresis। now we are discussing about the gel electrophoresis। it's the another technique or another method based on the charge, that is the gel electrophoresis। and as we discuss above, it is the part of or it is the type of electrophoresis and the basic principle of this electrophoresis is an electric field। the protein or other charged macromolecules will move with a velocity that depends directly on the charge on the macromolecule and inversely on its size and shape। now simple it is the most widely used technique in the field of different biochemistry and molecular biology for the separation of the molecules। and in gel electrophoresis the shorter molecules move faster as compared to the larger ones because
if we see in the gel filtration chromatography, gel filtration chromatography, the larger molecules will move faster as compared to the smaller ones, while in gel electrophoresis the small molecules move faster as compared to the larger ones due to their velocity and size. And the migration of this molecules is simply called as sieving or molecular sieving. Recently, gel electrophoresis is also used for the separation of the different nanoparticles. It is recent application of this gel electrophoresis, and it's another powerful techniques. And all the electrophoretic techniques, the basic or fundamental principle is the one is stationary phase, another one is mobile phase. So in stationary, for the preparation of stationary phase, it's different gels are used like agarose and polyacrylamide gel. So here we discuss the different properties of agarose gel. It is a polysaccharide extracted from the seaweed, that is Gelidinum, and it is non-toxic in nature. It is thus agarose gel is non-toxic in nature, and its concentration is used for the preparation of gel is 0.5% to 2%. It's enough for the preparing the gel, and the pore size is directly dependent upon the concentration of the gel. Now, agarose gel is used for the separation of 200 to 5000 base pair of the molecules, and sometimes the whole chromosomal structure is also separated out with the help of these gels. And for this separation, the pulse field gel electrophoretic techniques is used. Now this is the another example of gel is polyacrylamide gel. The polyacrylamide gel is the cross-linking polymer of acrylamide, and acrylamide is potent neurotoxin, while when it polymerized then it behave like a non-toxic and in nature. तो जब हम जेल की प्रिपरेशन करते हैं स्पेसिफिकली पॉलीएक्रिलामाइड की, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि हम अपने ग्लव्स और डायरेक्ट ग्लव्स पहनकर ही उसको हम हैंडल करें, जो नेकेड हैंड है उससे हम उसको ना डायरेक्टली टच करें. तो वो इसी वजह से दी जाती है क्योंकि जो अनपॉलीमराइज्ड फॉर्म होती है एक्रिलामाइड की, वो एक न्यूरोटॉक्सिन की तरह बिहेव करती है, और जो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए जेल की प्रिपरेशन के लिए वो 3.5% से लेकर 20% चाहिए. और जब पॉलीमराइजेशन होता है वो एन मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड का होता है. हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें मॉलिकुलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में दी हुई हैं, और इसका हमें जर्नल प्रिंसिपल पता होना चाहिए और कौन सा जेल यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए. लेकिन एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छी रहती हैं. देन दिस एक्रिलामाइड बताया कि वही न्यूरोटॉक्सिन जो अभी हमने डिस्कस करी है. फिर इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ शॉर्ट रेंज ऑफ सेपरेशन, और फ्यू मॉलिक्यूल्स भी हम सेपरेट कर लेते हैं. देन हम यहाँ पे एसडीएस पेज की बात करते हैं. एसडीएस स्टैंड्स फॉर द सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. द एसडीएस पेज जो यूज होती है फॉर एक्सक्लूसिवली सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए ही यूज होती है. और इसको हम डीएनए और आरएनए के सेपरेशन के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डीएनए आरएनए है वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज रहते हैं. नेगेटिवली चार्ज क्यों रहते हैं? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इन न्यूक्लिक एसिड. So that's why the SDS page cannot be used for the separation or for the purification of the nucleic acids. It's exclusively used for the separation of the protein molecules. Now is another material is starch. Starch sometimes is also used for the preparation of gel. This is the journal properties of gel लिखी हुई. अभी हमने जेल तो बना लिया, हमने सैंपल भी रन कर लिया, तो इसको विजुलाइज करने के लिए हम किस डाई का यूज़ करते हैं. तो डाई के लिए सिंपल विजुलाइज डाई जो है वो नेप्थोल ब्लैक है, एमाइड ब्लैक डाई हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो ये हमारी स्टेनिंग डाइज हैं, देन इथिडियम ब्रोमाइड जो है, और जेल रेड जो है वो सिंपल इसको विजुलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. बाकी इसके अलावा ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है वो ट्रैकिंग डाई है. कमासी ब्रिलियंट ब्लू जो है प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए है. तो ये सारी की सारी जो डाइज हैं वो डिफरेंट जो हम जब भी जेल रन कर रहे हैं उनको विजुलाइज करने के लिए है. Then this is the diagrammatic representation of the gel electrophoresis. इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं? सिंपल जो हमारा नेटिव प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो सर्कुलर फॉर्म है, ये हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं. एरोज जो है हमारी बीटा शीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देन ये 3D स्ट्रक्चर जो है आपकी 1 टर्मिनल N और C, तो उसको नेटिव प्रोटीन्स को इसको
सिंपल लीनियर फॉर्म में करने के लिए हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज करते हैं। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करती है, जो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक कर देती है और उसको यूनिफॉर्मली एक सिंपल यूनिफॉर्म फॉर्म में कर देती है। देन यूनिफॉर्म फॉर्म में होने के बाद जो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट है उसको एक सिंपल ऑल सोडियम डोडिसाइल फॉर्म उसको नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले आता है। देन यूनिफॉर्मली जब वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो जाते हैं तब उसको हम जो है ना स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जेल की हेल्प से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये जो जेल हमने बनाया है, अगर हम इसकी बात करेंगे जेल की, तो ये जेल हम यहाँ पे जो बना रहे हैं इसमें जेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेकिंग जेल और रनिंग जेल। जो स्टेकिंग जेल है उसकी पीएच जो होती है वो 6.8 होती है, रनिंग जेल की पीएच ऑलवेज डिफर होती है स्टेकिंग जेल से, दैट इज 8.8। और जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं हम। जो स्टेकिंग जेल है उसमें 5% एक्रिलामाइड लेते हैं, वाइल जो स्टेकिंग जेल है उसमें, रनिंग जेल है उसमें हम 10 to 15% एक्रिलामाइड की परसेंटेज लेते हैं, जिससे कि इजीली मोबिलिटी हो सके। देन इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से, और माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे। और आफ्टर माइग्रेशन अगर हम इसको सिंपल जो फाइनल स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी बात करें, उसको देखें, तो ये इस तरीके से सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 फॉर्म्स जो है आपकी आ जाएंगी। जो लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल की वो सबसे पहले आएगा, और उसका जो वेट होगा, उसका जो साइज होगा, दैट इज, अगर हम इसमें बात करें तो हमने यहाँ पे लाइसोजाइम का एग्जांपल लिया है, दैट इज 14,400 किलो डाल्टन। देन कार्बोनिक एनहाइड्रिस का अनदर एग्जांपल लिया है जो 35,000 का है। देन बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का लिया है जो 66,000 डाल्टन है। देन ग्लाइसिन का लिया है 99,000 है। एंड देन मायोसिन का लिया है जिसका 1,20,000 है। तो अपने मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सारे के सारे एंजाइम्स सिक्वेंसली अरेंज्ड हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये आपकी जो अनस्टैंडर्डाइज फॉर्म आपने अभी एक्सट्रैक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करिए वो है, उससे मैच करने के बाद आप इसको इजीली ले लेते हैं। मैं अब इसको जूम आउट करूंगा तो इसका डायरेक्ट जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपका वो सारा का सारा यहाँ पे विजुअलाइज्ड हो जाएगा। थैंक यू। बाकी पार्ट हम 3rd में डिस्कस करेंगे, बाकी टेक्निक जो है अभी इतना ही। थैंक यू।